A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, yesterday we left the topic at the lines, when I have fears that I may cease to be. This is a poem by John Keats, who is known as poet of beauty. Today, before starting the explanation, I want to tell you about John Keats' early death and his unreflecting love, his unfaithful beloved Fanny Brown. जैसा कि मैंने बताया था कि जॉन कीट्स की इस पोएम में इसके ऊपर उसकी जो अर्ली डेथ है उसकी डोमिनेंस है कि हम जब जूं हम फर्दर इसको पढ़ते जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि जॉन कीट्स is very depressed, dejected and disappointed. The frustration is very clear in these lines. तो realistic approach ये है कि he had blood cough before writing this poem. 2 or 3 years before, he had blood cough and he knew that he would die, and at that time he wrote this poem. Now हम लाइन्स पे आते हैं. When I behold upon the night's sad face, behold means to look at. When I behold, जब मैं देखता हूँ, upon the night, रात के sad face, तारों भरे चेहरे को. He is romantic poet and he loves nature, and here he is depicting nature, that whenever he looks at the night's sad face, all we know that he is talking about firmament. In other words, sky. In the night when we look at the sky, it is full of the stars. And now he is comparing. Now he has used here metaphor. He has compared night's starred face with the sky. वो कहता है कि जब मैं रात के तारों को देखता हूँ जो कि आसमान के ऊपर चमक रहे होते हैं, ह्यूज क्लाउडी सिंबल्स, एंड ही ऑल्सो लुक्स एट द सिंबल्स ऑफ हाई रोमांस. व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ हाई रोमांस? क्लाउड्स. Clouds are floating from one corner to another corner of the sky, and whenever he looks at those romantic symbols, what he thinks, and he thinks that I may never live to trace. Now here he is telling about his early death. He has doubts that he would die very soon. That's why he says that he would die very soon, and he would never be able to trace the beauty behind those romantic symbols, their shadows. Now he has used the word shadows. Shadows, he wants to trace the shadows of beauty, but he has shortage of time. He knows that he would die very early. यहाँ पे वो जानता है कि वो जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन he loves these romantic aspects, these natural beauties. He wants to explore the beauties. That's why he is telling us that he has short span of time. Further he says, with the magic hand of chance. Now magic, we know the meanings of magic. जादुई हैंड, हाथ को कहते हैं chance. Chance, here he is referring to fate, destiny, God Almighty, nature. He wants to clear the idea that the magic hand of chance, this nature, drives the romantic clouds from one corner to another corner. Another thing, he has used the pun of words over here. He is also a puppet in the hands of magic hand of chance, because he is also going to be driven by the magic hand of chance. He tells that he has no time, but he wants to trace all the beauties which are surrounding around him. Further, in these 2 lines, he is telling us about his faithless beloved. We know that
हर नेम वॉज फैनी ब्राउन, FANNYBRAWNE। फैनी ब्राउन वॉज हिज बिलव्ड, ये उसकी महबूबा थी। एंड व्हेन कीट्स ब्रदर डाइड ऑफ कंजम्पटिव डिजीज़, TB ट्यूबरकुलोसिस, जो कि लाइलाज मर्ज था, तो इस फैनी ब्राउन ने कीट्स को कहा कि जॉन कीट्स, तुम्हारा भाई TB का मरीज़ है, तुम्हें भी TB है, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू लीव यू। ही वॉज वेरी confused there because he had no idea that Fanny Brown could leave him or not, but she left him, she deserted him, and that's why he expresses his idea about Fanny Brown। and when I feel, वो कहते हैं जब मैं महसूस करता हूँ, fair creature of an hour, fair creature means खूबसूरत तरीन मखलूक ऑफ एन आर, वक्त की, that I shall never look upon thee more, कि he would be never able to look upon the beautiful face of his beloved Fanny Brown। अब इन लाइंस को हम देखते हैं कि इन लाइंस में जॉन कीट्स ने अपनी अर्ली डेथ को भी शो किया है और अपनी बेवफा महबूबा को भी डिस्कस किया है। लेट्स ब्रीफली डिस्कस इट। When I behold upon the night starred face, वो कहता है कि जब मैं देखता हूँ रात के तारों भरे चेहरे को, ह्यूज क्लाउडी सिम्बल्स, और उस पे बड़े बड़े बादल तैर रहे हैं, ऑफ हाई रोमांस, जो रोमांस की अलामत हैं। कहता है एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, दैट आई may नेवर लिव, आई may नेवर लिव, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, टू ट्रेस, कि मैं खोज लगा सकूँ, देयर शैडोज़, उनके सायों का, विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस। यहाँ पे वो पन वर्ड यूज़ करता है कि एक तो मैजिक हैंड ऑफ चांस बादलों को मूव करता है, दूसरा उसकी ज़िंदगी भी मैजिक हैंड ऑफ चांस के अंडर है। फिर इन दो लाइंस में जॉन कीट्स अपनी महबूबा का हवाला देता है। वो कहता है कि जब मैं अपने वक्त की सबसे खूबसूरत तरीन मखलूक के बारे में फ़ील करता हूँ, सोचता नहीं हूँ, फ़ील करता हूँ, तो वो कहता है कि मैं आई शैल नेवर लुक अपॉन दी मोर, कि इस मौत की वजह से मैं कभी भी तुम्हें ज़्यादा नहीं देख पाऊँगा। ओके, एंड ही सेज दैट नेवर हैव रेलिश, यानी ही वॉन्ट्स टू हैव फन इन द कंपनी ऑफ हिज ओन बिलव्ड फैनी ब्राउन, बट he knows that he would die very soon, and the dejection, frustration and disappointment through his words, that's very clear that he is going to die very soon. And in this state of disappointment, he is uttering the words, he is telling us about his compulsion that he would never live. So he is नेवर हैव रेलिश इन द फेरी पावर। फेरी पावर किसकी है, इस पे गौर करते हैं। उसको अपनी महबूबा को वो परी कह रहा है, यानी फैनी ब्राउन इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव ह्यूमन बीइंग फॉर हिम। वो कहता है कि ही वॉन्ट्स टू रेलिश, रेलिश मीन्स टू एन्जॉय, ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय the company of Fanny Brown, but चूँकि he has no more time, he is feeling disappointment and dejection. The frustration is clear in these lines, that when he says never have relish, कि वो कभी मज़े नहीं उठा सकेगा, in the fairy power, in the company of his own beloved Fanny Brown. And now the most attractive word in this poem is unreflecting love. Now हमें नहीं पता कि this is scientific word। रिफ्लेक्शन का मतलब हर किसी को पता है कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, कि जब when the rays of the sun, जब सूरज की शुआएं किसी शीशे पर पड़ती हैं तो the mirror reflects them back, उन्हें वापस भेज देता है। इसी तरह एक बंदा जब किसी को लाइक करता है तो उसकी लाइकनेस की रेजेस जब उस पर पड़ती हैं, अगर वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करे
तो ये एक फेथफुल लव होती है। अगर वो रिफ्लेक्टिव जो कोई उनकी मोहब्बत की लाइंस को रिफ्लेक्ट बैक ना करे तो वो अनरिफ्लेक्टिंग लव है। तो इसका मतलब क्या होगा? फेथलेस। कि नाउ ही हैज़ डिक्लेयर्ड फैनी ब्राउन एज अ फेथलेस, एक बेवफा बिलव्ड महबूबा है कि फैनी ब्राउन बेवफा महबूबा है। नाउ ही हैज़ क्लियर्ड हिज आइडिया कि फैनी ब्राउन हैज़ लेफ्ट हिम बट ही स्टिल लव्स her and he does not want to leave her company, but his compulsion that he has no more time, that is very pricking, that is very itching, जो कि बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि उसे पता है कि चंद दिन पहले उसे ब्लड कफ आई और 2-3 साल का मेहमान है। तो इसलिए अपनी पूरी वो डिजेक्शन को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बता रहा है कि वो अपनी महबूबा की कंपनी में रेलिश करना चाहता था। गो महबूबा उसकी बेवफा है, फेथलेस है, बट ही स्टिल लव्स हर। देन अगली लाइंस में, नाउ हेयर, जब हम इन लाइंस को पढ़ते हैं तो कीट्स के बारे में हमारा आइडिया थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे? क्योंकि कीट्स को मैंने कहा कि कीट्स इज़ अ रोमांटिक पोएट, बट इन लाइंस को पढ़ के हम ये सोचते हैं कि कीट्स इज़ नॉट प्योर रोमांटिक, कि प्योर रोमांटिक नहीं है, कि वो पूरी अपनी पोएम में इमेजिनेशन में नहीं रहता, नेचुरल ब्यूटी में नहीं रहता, वो रियलिस्टिक अप्रोच पे आ रहा है। इन लाइंस को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि इन द एंड ऑफ दिस पोएम ही हैज़ बिकम अ रियलिस्टिक पोएट। कहते हैं देन ऑन द शोर। अब शोर पे आते हैं। शोर किसे कहते हैं? साहिल को। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि उसने शोर का लफ्ज़ यूज़ क्यों किया है। ये पूरी दुनिया 71% वाटर है और 29% वाटर, 71% वाटर है, 29% ज़मीन है। अब हम इस सिनेरियो में देखें तो ये टोटल एरिया यूं लगता है कि हम एक आइलैंड पे खड़े हैं और इर्द गिर्द हमारे पानी है। तो पूरी दुनिया को वो शोर कहता है कि देन ऑन द शोर ऑफ द वाइड वर्ल्ड, फिर कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया के साहिल पे आई स्टैंड अलोन, अकेला खड़ा हूँ। दिस इज़ बिटर रियलिटी। नाउ ही इज़ डिस्कसिंग विद अस कि ही हैज़ नथिंग विद हिम, नो फ्रेंड, नो मेट, नाउ ही इज़ वेटिंग फॉर हिज अपकमिंग डेथ। इसलिए वो कहता है आई स्टैंड अलोन, अकेला खड़ा हूँ, एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, टिल लव एंड फेम, कि मोहब्बत और शोहरत, टू नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, डू सिंक, इन तमाम चीज़ों ने डूब जाना है। दिस इज़ द रियलिस्टिक अप्रोच। एट द एंड ऑफ द पोएम वो एक रियलिस्टिक बंदा बन के कहता है कि इस हकीकत को पाकर कि आफ्टर फाइंडिंग द रियलिटी दैट ही इज़ गोइंग टू डाई, he feels that he has nothing with him. He is just alone person and he is alone standing on the wide shore of this wide world. और फिर क्या कहता है कि मोहब्बत, शोहरत, ये जो लव अफेयर्स हैं, ये जो मोहब्बत है, ये जो शोहरत है, ये जो शायरी है, ये कुछ भी नहीं है, हर चीज़ ने डूब जाना है, क्योंकि बंदे ने क्या हो जाना है? मर जाना है। तो ये उसके पैथेटिक वर्ड्स हैं। उठिया।